All right. Bismillahirrahmanirrahim. So today is the 21st lecture for microeconomics. Last lecture में हमने discuss किया था related to the costs in the short run for a producer, in which we have learned about different types of cost measures. That includes fixed cost, variable cost, total cost, average costs, and marginal costs. Then we made a graph for these respective costs and those cost curves were showing that at which point the average costs were getting minimized, जहाँ पर हमारा average variable cost marginal cost को intersect करता था, that was the minimum point for the average variable cost, and the point where average total cost was intersecting the marginal cost was the point minimum for the average total cost. So the basic motive for the producer is profit maximization, and the producer is always able to maximize his profit when he is able to produce in a way that he is having technologically and economically efficient combinations of inputs. So producer will going to produce the output level at that certain point in which he is able to achieve the cost minimization point. So that was the main concept which we learned in the previous lecture, and that was the short run production function. शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट कर्व्स होती हैं वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व दैट इज द आइसो कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में डिस्कस करना है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक हमारी सेम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड वी आर ऑन चैप्टर 7 कॉस्ट्स। long run costs with two variable inputs. So long run में आपको मैंने already बता चुका हूँ कि long run में जो हमारे variables होते हैं they are almost changing. The producer is having the capability to change the variables. So long run is that time period in which the producer is capable to change each and every of the input. So capital and labor, they both are going to change. So what actually is the long run cost? Suppose if the producer is able to produce the output level at $100, ठीक है, अगर वो 20 लेबर हायर करता है और 0 कैपिटल हायर करता है, I'm going to annotate, मैं annotation start करता हूँ एक मिनट। All right, 20 is the labor and 0 is the capital. So there will be a labor cost, and labor cost is known as the wages. ये W जो यहाँ पे लिखा है, this is called wages. So labor cost is wage, and जो wage है वो $5 है, मीन्स के मंथली $5 पे करना पड़ते हैं, डेली बेसिस पे $5 पे करना पड़ता है। तो जो भी ये बहरहाल वेजेस $5 है, तो अगर वो 20 लेबर हायर करते हैं और 0 कैपिटल है, तो there is no capital cost, but there is a labor cost, and so is the total cost is $100. एक और कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं कि that if we use 14 units of labor and 3 units of capital, so the labor cost will be $70 because the labor wage is $5. So you're going to multiply 5 with 14, so that is 14, $70. And the capital cost is $30. So you are having the same total cost of $100. So similarly for the bundle C, अगर आप 10 units of labor or 5 units of capital use करते हो, so you are going to end up with a labor cost of $50 and a capital cost of $50. So same cost, $100. Similarly, the bundle D and E. So we have 5 main bundles A, B, C, D, E. These 5 main bundles are actually, representing the same level of cost for the producer. So
इनमें से कोई भी आप बंडल चूज कर लो, आपको $100 की टोटल कॉस्ट पे करना पड़ेगी. So the firm can use many combinations of labor and capital that cost the same amount. Suppose that the wages are, मैंने आपको बता दिया $5, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिखी हुई है. So these 5 main combinations for labor and capital provide same level of cost. The combinations of labor and capital are plotted on an isocost line. अगर हम इन combinations को एक ऐसे curve के ऊपर, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, तो we are going to able to make a isocost line. This one, isocost line. Isocost line is a curve. Isocost line is a curve that shows the efficient combinations of labor and capital that can produce at same output level. So the 5 combinations of labor and capital जो हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, A, B, C, D, E, जो हमें $100 की टोटल कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें, आपकी ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है वो है हमारा लेबर. एक्स एक्सिस पे हमेशा लेबर को रखना है आपने. हमेशा जरूरी तो नहीं होता, लेकिन आप इकोनॉमिक थ्योरी में ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाइड और यूनिक वे में लेके चलते हो, जो कि बुक्स में इस तरीके से यूज किया जाता है, आर्टिकल्स में इस तरीके से यूज किया जाता है. तो आपने भी एक्स एक्सिस पे लेबर और वाई एक्सिस पे कैपिटल रखना है. तो अब गौर करो कि वो जो अभी हमने पीछे कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, ए बी सी डी ई, ये तमाम के तमाम एक आइसोकॉस्ट कर्व के ऊपर आ रहे हैं, और इस आइसोकॉस्ट कर्व पे $100 उसकी टोटल कॉस्ट है. If you're going to move to a higher isocost curve, अगर मैं ज्यादा इनपुट्स अपने यूज करता हूँ, इनपुट्स को डबल कर देता हूँ, तो I am going to have a higher cost. इसी तरह अगर मैं इनपुट्स कम कर देता हूँ, मेरे वो कॉम्बिनेशन जो कम इनपुट्स यूज होते हैं जिनमें, तो उस पे आइसोकॉस्ट मेरी $50 की शो हो रही है. सो आइसोकॉस्ट कर्व की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख लो सारे, मैं बता देता हूँ. आइसोकॉस्ट कर्व is a downward sloping curve, and there is a trade-off between capital and labor. If you have to increase the units of labor, you have to reduce the units of capital. So there is a trade-off between capital and labor. So isocost curve is a downward sloping curve. It is always a straight line curve. It is always a straight line curve, because cost is an absolute term. इसकी डेफिनेशन मैंने आइसोकॉस्ट कर्व की जो अभी आए हैं, मैंने इसकी मौजूद है ऊपर. A curve that shows the efficient combinations of labor and capital that can produce at same level of costs. Any confusion? किसी को कोई कंफ्यूजन है या समझ ना आया तो वो पूछ सकता है. ऑलराइट, आगे मूव करते हैं. आपको याद होगा बजट लाइन हमने पढ़ी थी इन डिफरेंट कंज्यूमर थ्योरी में, और वो बजट लाइन हमें बताती थी दो कमोडिटीज और कंज्यूमर का एक बजट है. अगर तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती थी तो देयर वाज अ रोटेशन ऑफ बजट लाइन. आप सबको वो कॉन्सेप्ट याद है? सेम इज द सिचुएशन फॉर द आइसोकॉस्ट कर्व. आइसोकॉस्ट कर्व के अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ लेबर दैट इज द वेजेस इंक्रीज कर जाते हैं, किसी भी वजह से वेजेस इंक्रीज कर जाते हैं, तो आपकी जो आइसोकॉस्ट कर्व होती है ये लेफ्टवर्ड रोटेट कर जाती है, जिसमें आपकी लेबर पहले 60 मैक्सिमम आप यूज कर सकते थे, लेकिन लेबर के इंक्रीज होने की वजह से अब आप मैक्सिमम 30 लेबर्स को यूज कर सकते हो. आपकी टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हुई, बट द लेबर इज नाउ मोर एक्सपेंसिव. आपने कॉस्ट को चेंज नहीं करना,
तो आप क्या करते हो, लेबर कम हायर करते हो बिकॉज द लेबर गॉट एक्सपेंसिव। इसी तरह अगर कैपिटल का रेंट ज्यादा हो जाता तो देयर विल बी अ रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, आपका कैपिटल कम हो जाता और रोटेशन आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाती। तो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट वी लर्नड in the chapter of consumer theory related to the budget line, the shift and the rotation of the budget line को concept हमने पढ़ा था. The same mechanism is going to apply on isocost curve. If the price of any of the factor input is going to change, there will be a rotation in the isocost curve. ये लिख लो आप point में. If there is a change in the factor price, there will be a rotation of the isocost curve. Price for capital is rent and price for labor is wages. Any confusion? Muhammad Usman Yusuf. Muhammad Usman Yusuf Joya. उस्मान साहब आवाज आ रही है आपको? हमजा खान. यस सर. हमजा खान क्लियर हो रहा है? यस सर. जवाद फजल. यस सर. शेख हमाद. ठीक है. लाइबा सईद. यस सर. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? जी. ठीक हो गया. You guys are present. तो this was the concept for the isocost curve. आगे मूव करते हैं. आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने एक आइसोक्वांट कर्व पढ़ा था. आइसोक्वांट कर्व हमारा प्रोडक्शन थ्योरी से रिलेटेड था. आइसोक्वांट कर्व चैप्टर नंबर 6 जो अभी हमने पर्लॉफ की बुक का पढ़ा है, उसमें हमने लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर एक आइसोक्वांट कर्व पढ़ा था. That isoquant curve showed the different combinations of capital and labor that gave the same level of output. So isoquant curve was a downward sloping convex to origin curve. convex to origin था और कैपिटल और लेबर के दरमियान एक ट्रेड ऑफ था और उस कर्व के ऊपर वो तमाम के तमाम कैपिटल और लेबर के कॉम्बिनेशंस थे जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करते थे फॉर द फर्म. तो दैट वाज द आइसोक्वांट कर्व. आज हमने आइसोकॉस्ट कर्व पढ़ा और आइसोकॉस्ट कर्व मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया. द कॉम्बिनेशंस ऑफ two factors, the combinations of capital and labor that provide the same level of cost. इनकी definitions भी बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क ये है कि आइसोक्वांट में आउटपुट होता है और आइसोकॉस्ट में कॉस्ट होता है. तो These were the two curves और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सेम तरीके से पढ़ाऊं जिस तरीके से मैंने आपको कंज्यूमर थ्योरी में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व कराया था. तो उसी तरीके से मैंने ये डिजाइन किया आपका लेक्चर. आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट कर्व भी सेम तरीके से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना और एक यूनिक तरीके के अंदर आप इसको तैयार कर लो. तो आइसोक्वांट कर्व और आइसोकॉस्ट कर्व हमारे पास मौजूद होता है. तो the main question was that कि हमने कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे पढ़ लिए हैं कि कॉम्बिनेशंस ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं. तो प्रोड्यूसर के पास कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जहां पर उसको सेम लेवल ऑफ आउटपुट और सेम लेवल ऑफ कॉस्ट मिलती है. द मेन क्वेश्चन इज कि प्रोड्यूसर ने वो कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है फॉर द प्रोडक्शन. सो
the producer is going to select that particular combination जहां पर उसका technologically efficient and economically efficient points achieve होते हैं, तो वहां पर उसका profit maximize होता है. तो इनमें से वो कौन सा combination है जहां पर producer is able to maximize the profit? Before moving to the next slide, आप में से कोई volunteer करना चाहता है? Anyone can explain कि हम किस तरीके से find कर सकते हैं the producer equilibrium? कोई बता सकते हैं? Anyone? Same concept जो indifference curve budget line का पढ़ा था. कायनात. सर जहाँ पे आइसोकॉन और आइसोकॉस्ट कर्व इकट्ठे होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है ना वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है. वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है जहां पर वो एक दूसरे को टेंजेंट आ जाते हैं. इंटरसेक्ट मींस के एक दूसरे के टेंजेंट हो जाते हैं, तो वो वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. वेरी गुड कायनात. तो आपके सामने मैंने ये आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट कर्व्स ड्रॉ किए हैं. आप गौर करो, ये हमारा आइसोकॉन्ट कर्व $4,000 वाला. So we have an isoquant curve for 3,500 output, 4,000 output and 4,500 output. इसमें जो ये वाला हमारा आइसोक्वांट कर्व है, आइसोक्वांट नंबर इसको मैं लेबल कर देता हूँ 2. This is the second isoquant, this is the first isoquant and this is the third isoquant. So अब गौर करो, जो हमारा सेकंड आइसोक्वांट कर्व है ये हमारे आइसोकॉस्ट कर्व के बिल्कुल टेंजेंट है. टेंजेंट का मतलब होता है कि वो उसको जरा से क्रॉस करके जा रहे हैं और वो उस पॉइंट पे उसको क्रॉस करेगा जहां पर वो मिनिमम होता है. तो this second isoquant curve is tangent to the isocost curve, and at this point the producer is able to achieve the optimum combination, optimum bundle of capital and labor that provide him the technologically and economically efficient production system. इस पॉइंट के ऊपर जो आपका आइसोक्वांट है वो हाईएस्ट पॉसिबल आइसोक्वांट है और मिनिमम पॉसिबल आइसोकॉस्ट है. So I have a question, can I be able to produce at 4,500 output? क्या मैं 4,500 आउटपुट पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं थर्ड आइसोक्वांट पे प्रोडक्शन कर सकता हूँ? क्या बता सकते हैं? जी कायनात. सर थर्ड कर्व पे पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उनका मोस्ट एफिशिएंट और टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट पॉइंट सेकंड कर्व पे ही है. उससे ऊपर जाएंगे तो उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी प्रोड्यूसर्स को. वेरी गुड. तो थर्ड आइसोक्वांट पे मैं मूव नहीं कर सकता. उसकी एक तो रीजन ये है कि वो एफिशिएंट पॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करते और दूसरी रीजन ये है कि वो मेरी कॉस्ट से बियॉन्ड है. तो आई विल नॉट बी गोइंग टू टू द थर्ड पॉइंट. सो सेकंड पॉइंट मेरे लिए फीजिबल है, लेकिन मैं क्या 1 पे भी मूव कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ नंबर 1 आइसोक्वांट कर्व के ऊपर? कानात. सर प्रोडक्शन तो हो सकती है लेकिन वो एफिशिएंट पॉइंट नहीं है. वेरी गुड. आइसोक्वांट कर्व जो 1 है हमारी, इसके ऊपर मैं यहाँ पर भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ और ये वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ कैपिटल और लेबर का, लेकिन ये एफिशिएंट पॉइंट्स नहीं है. मैं इससे नीचे कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ. ये जो मेरा आइसोकॉस्ट कर्व है इससे नीचे मैं कहीं पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली एफिशिएंट पॉइंट्स मुझे नहीं देंगे. मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा. मैं प्रॉफिट अर्न तो कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकता हूँ. तो मैं एक मैक्सिमम पॉइंट तक अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ और वो पॉइंट है मेरा ये वाला पॉइंट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट. इससे बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता. इससे बियॉन्ड मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आई हैव अ लिमिटेड बजट इन माय पॉकेट.
I have a limited investment, I have a limited, you know, capital available, मेरी cost यहीं तक जाती है. So at the producer equilibrium point, the costs so at the producer equilibrium point, the costs are minimized and the output is maximized. Thus, the profit is maximized. ये मैंने ना लेफ्ट साइड पे ये दो बातें लिखी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसके ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिया ताकि आप लोगों ने इसको याद रखना है अच्छी तरीके से. मैंने पेपर में ऐसे ही पूछ लेना आप लोगों से कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बेसिकली होता क्या है. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉस्ट मिनिमाइज होती हैं और आउटपुट आपका मैक्सिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हो और आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाता है. ये बड़ी आम सी चीज ये है कि आपको मैं कह दूं कि आपको मैं 1000 रुपया देता हूँ, मुझे जो है ना बिरयानी बना के दो, तो आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि मैं कहाँ से जो है वो सस्ती मुझे चावल मिल जाएंगे, चिकन मिल जाएगा, मैं सस्ते से काम करूंगा लेकिन मैं आउटपुट भी मैं ज्यादा से ज्यादा बना सकूं. मुझे जहां से सस्ती चीज मिलेगी मैं वो चीज यूज करूंगा और उस सस्ती चीज को यूज करके मैं मैक्सिमम बिरयानी बनाने की कोशिश करूंगा और उसमें मैक्सिमम टेस्ट ऐड इन करने की कोशिश करूंगा. तो आई एम गोइंग टू थिंक अ लॉट. तो 1000 रुपए के अंदर अंदर मैंने चावल भी लेने हैं, यू नो, चिकन भी परचेज करना है, मसाला चाट भी लेने हैं. तो वो वाला मैं यूटिलाइज करूंगा जहां पे मुझे कम से कम कॉस्ट मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा आई एम एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट. तो ऐसे कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करूंगा फॉर डिफरेंट, यू नो, रॉ मटेरियल्स, उसके इनपुट जो भी हैं, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट. और फिर अगर मैं उसको सेल करूं तो आई एम एबल टू, यू नो, मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं चिकन केएनएन्स का यूज करना चाह रहा हूँ और यू नो मैं बहुत एक्सपेंसिव होता है चिकन, उसका आप लो कॉस्ट पे भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने केएनएन्स का चिकन लेना है अपनी बिरयानी के लिए, तो फिर आपका क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा, कॉस्ट आपकी जो है वो सेम ही रहेगी क्योंकि 1000 आपने रुपीज खर्च तो करने ही है लेकिन आपका आउटपुट लेवल कम हो जाएगा. सो वो भी आपके लिए समझो कि इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं होगा. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोडक्शन मैकेनिज्म. प्रोडक्शन के दौरान जब भी आप बिजनेस करोगे, ये बड़ी आम सी चीज है, ये बिजनेसमैन अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, आप लोग भी करते रहते हो, हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में. बट द मेन थिंग इसको थ्योरेटिकली पढ़ना, कि बेसिकली थ्योरेटिकली हम किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो यू कैन प्रोड्यूस एट एनी point below the isocost curve, but you cannot go beyond the isocost curve. आपको मैंने 1000 रुपया दिया, आपको मैंने 1200 रुपया नहीं दिया, आपके पास 1200 रुपया नहीं है, आपके पास सिर्फ 1000 रुपया है. तो 1000 के अंदर ही आपने जो है वो अपना यूज करना है तमाम चीजों को. एनी क्वेश्चन, एनीवन हैविंग अ क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. All right. So there are 3 different ways in order to, you know, minimize the cost. 3 different ways होते हैं cost minimization. पहला तरीका ये होता है कि आपने lowest isocost की तरफ मूव करना. सपोज कि आप अपनी isocost जरा कम कर दो, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का तो रूल नंबर 1 होता है कि लोएस्ट isocost, अगर आपने कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो. लेकिन लोएस्ट isocost के लिए आपको अपने आउटपुट भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा. सो द नंबर 1 इज लोएस्ट isocost कर्व, नंबर 2 इज टेंजेंसी रूल. टेंजेंसी रूल अभी हमने पढ़ा कि जहां पर आपका आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट कर्व एक दूसरे को टेंजेंट होता है, दैट इज द सेकंड मेथड, द वन वी जस्ट स्टडीड. एंड थर्ड you know approach is the last dollar rule. लास्ट डॉलर रूल के जरिए से भी आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो. अभी हम सिर्फ कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट मिनिमाइजेशन के साथ आउटपुट मैक्सिमाइज होती है टेंजेंसी रूल के साथ. तो ये जो बाकी 2 तरीके हैं ये कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं आपकी, लेकिन आउटपुट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता. तो
लास्ट डॉलर रूल हमें क्या बताता है? पिक द बंडल ऑफ इनपुट्स वेयर द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन वन इनपुट गिव्स एज मच एक्स्ट्रा आउटपुट एज द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन एनी अदर इनपुट. सो आप लोगों ने बेसिकली टेंजेंसी रूल याद रखना है, बट अगर आपके पेपर में आता है कि आप इसके अलावा भी कोई कॉस्ट मिनिमाइजेशन की अप्रोच है तो वो लोएस्ट आइसोकॉस्ट और लास्ट डॉलर रूल है. सो थ्योरेटिकली तो हमने टेंजेंसी रूल पढ़ लिए हैं, तो जस्ट रिमेंबर द टेंजेंसी रूल. मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, तो आप लोगों ने टेंजेंसी रूल याद रखना है. बट इन केस there are two other methods also to minimize the cost, but those methods are not related to the output maximization. आगे मूव करते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. आपको याद है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? रिटर्न्स टू स्केल किसको याद है? कोई मुझे बता सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल क्या था? चैप्टर नंबर 6, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कोई वॉलंटियर करना चाहता है? एनीवन? किसी को याद है तो वो बता सकता है वो कॉन्सेप्ट क्या था? हसीब अहमद. यस सर. मुझे बता सकते हो आपकी व्हाट वाज द रिटर्न्स टू स्केल कॉन्सेप्ट? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या था? सर आपकी आवाज कट रही है. रिटर्न ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या था? व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट रिटर्न्स टू स्केल? and the quantitative charge in output of a firm or industry resulting from an increase in our inputs. ठीक है, आपने डेफिनेशन को जो है वो बताया है. कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है? शेख हमाद, तुम करो. शेख हमाद. शेख हमाद. सफा आरिफ. Yes, sir. Can you explain the concept of returns to scale? Increasing returns to scale, decreasing returns to scale and constant returns to scale. कायनात. आप लोग लेक्चर्स पुराने पढ़ते नहीं हो क्या? भूल जाते हो सब? जुजैका नूर. कायनात इजाज, आप बता सकते हो? Sir, increasing returns to scales is when more than proportionate increase in output occurs. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल थे जब आप आउटपुट डबल करते थे आपका, सॉरी इनपुट डबल करते थे चेंज आता था. डबल हो जाता था. ठीक है, वेरी गुड. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था कि जब आप अपने इनपुट्स को डबल करते थे आपका आउटपुट भी डबल हो जाता था. और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये था कि अगर आप अपना इनपुट को डबल करते थे आपका आउटपुट लेस देन डबल होता था. प्रोपोर्शनेट, उसकी प्रोपोर्शन जरा लेस होती थी. तो ये रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट था हमारा. दैट वाज रिलेटेड टू जब हम अपने इनपुट्स को डबल करते हैं तो हमारा आउटपुट कितने से जो है वो चेंज करता है. दैट वाज द रिटर्न्स टू स्केल. और फर्म की कोशिश ये होती थी कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तक अचीव करे, अप्रोच करे.
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से फायदा ये होता था कि जब वो अपने इनपुट्स को डबल करता था तो आउटपुट उसका मोर देन डबल होता था. दैट वाज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी उसकी लेबर और कैपिटल की हाई होती थी. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. आज हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बिल्कुल ही सेम सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप अपने इनपुट्स को डबल करते हो तो होना तो आपका जो कॉस्ट्स हैं वो मोर देन डबल, सॉरी डबल होनी चाहिए. कॉस्ट जाहिर है आपने इनपुट्स अगर डबल किए तो उसकी कॉस्ट भी डबल हो जाएगी. पहले आप 2 लेबर यूज कर रहे थे, आप 4 लेबर यूज करोगे तो आपकी लेबर कॉस्ट डबल हो जाएगी. लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता ये है कि आपकी जो कॉस्ट्स होती हैं ये डबल नहीं होती, दे आर लेस देन डबल. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉस्ट फंक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और इसके अंदर होता ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डबल द इनपुट्स एंड यूटिलाइज मोर इनपुट, the cost is going to increase but at a lower rate. आपका डबल से कम होता है कॉस्ट आपकी. जिस तरीके से आप बल्क में चीजें बाय करते हो, तो बल्क में चीजें जब बाय करते हो, ज्यादा चीजें बाय करने से आपकी कॉस्ट रिलेटिवली कम हो जाती है. बढ़ती तो है लेकिन रिलेटिवली उतनी नहीं बढ़ती जितनी वो डबल के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, वो उससे जरा कम बढ़ती है. इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ वेरी बैड सिचुएशन. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डबल द इनपुट लेवल, द कॉस्ट इज गोइंग टू double but at a higher rate. It is going to more than double. So this was the situation when आप अपने इनपुट्स को बढ़ा रहे हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि $5 इज द वेज रेट और 2 लेबर यूज करते हो तो 5 into 2 इज $10 आपकी कॉस्ट आती है. लेकिन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा कि 5 into 2, जब आप 2 लेबर यूज करोगे और $5 वेज रेट है, लेकिन आपको टोटल कॉस्ट अब $12 या $15 आएगी. आनी तो $10 चाहिए थी लेकिन $15 आ रही. सो अगर आप इनपुट को ज्यादा करते हो तो आपकी कॉस्ट मोर देन डबल हो जाती है. A firm must achieve the economies of scale by increasing returns to scale for growth and development, have higher profits in the long run. अगर तो economies of scale तक आप चले जाते हो, आपकी फर्म काम कर रही है economies of scale के अंदर कि अपने इनपुट को ज्यादा कर रही है लेकिन उसकी कॉस्ट डबल से जरा कम हो रही है, तो दैट इज अ वेरी गुड सिचुएशन. यू कैन यूज द वर्ड प्रोपोर्शनेट. कहना जिस तरह आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, प्रोपोर्शनेट का वर्ड यूज किया, दैट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन बिकॉज द मेन थिंग इज कि वो प्रोपोर्शन उसका डिफरेंट है. हसीब ने भी जो डेफिनेशन पढ़ी है वो भी ठीक थी, लेकिन चीजों को जरा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपने जो इजी डेफिनेशन है वो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसकी तरफ मूव ऑन किया करो. सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स. आपको याद होगा कि हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट जो पढ़ी थी हमने, टोटल एवरेज कॉस्ट इन द शॉर्ट रन. उसके ग्राफ हमेशा यू शेप्ड होते थे. अच्छा, शॉर्ट रन टाइम पीरियड बहुत सारे टाइम पीरियड्स होते हैं, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. हर महीने का एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है अगर तो फर्म मंथली बेसिस पे कर रही है. अगर तो एनुअली बेसिस पे कर रही है तो फिर हर साल का एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसका. तो यू नो वो उसको कहते हैं बिजनेस ईयर. ठीक है, बिजनेस साइकिल के अंदर एक बिजनेस ईयर होता है और उस बिजनेस ईयर के अंदर फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, कभी बिजनेस नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है. तो दैट इज अ बिजनेस ईयर और बिजनेस मंथ जो भी उसका है. तो what if you're going to combine the short run average cost curve? हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है, अगर आप उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो तो यू आर एबल टू कैलकुलेट एंड ड्रॉ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी एक यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व होती है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो अ यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व. ये एक मिनिमम पॉइंट पे भी आ रही है, लेकिन इसकी दो बातें आपने मेन याद रखनी है. हमारा जूम का सेशन खत्म होने लगे, 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए. जस्ट रीजॉइन दिस सेशन.
ऑलराइट, मैं आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में बता रहा था. Long run average cost curve is that particular curve that represents the average costs in the long run. And that is formulated by combining the different short run average cost curves. उनके जो minimum points होते हैं, अगर आप उन तमाम को join करो तो you are able to calculate the long run average cost curve. आपको याद होगा कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में कि जहां पर आपका एवरेज टोटल एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाता था, वो आपका मिनिमाइजिंग पॉइंट होता था. तो हमेशा कॉस्ट मिनिमम पॉइंट्स हम रखते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज्ड पॉइंट्स रखते हैं. तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं अपने कर्व के ऊपर. यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल होता है दैट इज द आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट होता है. तो the two main which you have to remember in a long curve, जो मैं आपसे पेपर में हर हाल में पूछूंगा, that is when the long run average cost curve is downward sloping. अभी ये fall कर रहा है, चाहिए. long run average cost curve यहाँ पे fall कर रहा है. इस पॉइंट पे अगर आप अभी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अगर आपकी कम हो रही है ऑन विद टाइम, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती चली जा रही हैं, तो यू आर इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ जाएगा, हमारे कितने परसेंट है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और उसके बाद जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, दे स्टार्ट टू इंक्रीज. So that situation is a very bad situation. इसका मतलब है कि आउटपुट बढ़ाते जाओ तो इन द लॉन्ग रन आपकी कॉस्ट ज्यादा होती चली जा रही हैं. तो ये होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन. अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो गौर से सुन ले दोबारा. जिस वक्त आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, फॉल कर रही होती है, कि जैसे आप अपने इनपुट आउटपुट को बढ़ा रहे हो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती चली जा रही हैं. So this situation is called economies of scale. This situation is called economies of scale. But once it goes to a minimum point, अगर तो आपकी long run average cost output के बढ़ाने के साथ increase कर रही हैं, so that situation is called diseconomies of scale. Economies of scale का फायदा क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा ये होता है कि जब आप अपने आउटपुट को बढ़ाते हो तो इन द लॉन्ग रन आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही होती है. इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? इसको अचीव किया जा सकता है, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के लिए, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लेकर आके. ये तमाम स्ट्रेटेजीज हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम कर लो, अपनी इंडस्ट्रियल एरिया को मार्केट के करीब ले आओ, अपनी स्किल्ड लेबर हायर करो, ज्यादा अच्छा कैपिटल यूज करो, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा मेंटेन तरीके से चलाओ. तो यू आर एबल टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. चीजों को बल्क में बाय करो. अगर आपने रॉ मटेरियल्स परचेज करने तो बल्क में परचेज करो, उससे भी आपकी जो है ना लोअर कॉस्ट आती है. So there are a lot of different strategies in order to achieve economies of scale. Economies of scale के अंदर अगर फर्म लाई करती है तो फर्म is able to grow and develop. फर्म ग्रोथ अचीव कर सकती है. Any question? Any question? All right. So this was a ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ा था. लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के अंदर आपके कैपिटल एंड लेबर दे बोथ आर वेरिएबल, दे बोथ कैन चेंज. और उसमें फिर हमने आइसोकॉस्ट कर्व ड्रॉ किया. आइसोकॉस्ट कर्व इज अ कर्व दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ कॉस्ट. जो डेफिनेशंस मैं आपको लिखवाता हूँ ना, आपने वो याद रखनी है प्लीज. इंटरनेट से आपको डेफिनेशंस मिल तो जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट मी वो हो सकता है आपको समझ भी ना आए. तो जो डेफिनेशंस मैं आपको लिखवाता हूँ आपने वो वाली डेफिनेशंस याद रखनी है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको. डोंट गो आउट ऑफ द वे, अपने प्रेजेंटेशन से बाहर मत जाओ, बिकॉज जो डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा जो है ना उसको सिंप्लीफाइड वे में
और बहुत ही ज़्यादा समराइज्ड वे में इसको मैं लिखवा रहा हूँ। हमारी क्लास में एक रोमी नाम का लड़का है, आई एम गोइंग टू रिमूव हिम, आई डोंट नो ये कौन है। ऑलराइट, तो this was the isocost curve. Isocost curve is a downward sloping curve जिसमें कैपिटल और लेबर का ट्रेड ऑफ होता है। फिर हमने एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया था जिसमें आइसो पॉइंट और आइसोकॉस्ट कर्व को जहाँ पे वो एक दूसरे के टेंजेंट हो जाते थे, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट था। And at that point you are able to achieve the minimized costs and maximized output, जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होता है। ये मेन चीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इस टाइम बोल रहा हूँ, ये आप लिख लो सारे, मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्म का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स को यूज करें। So this was the main concept for chapter 6 and chapter 7. दिन दोनों चैप्टर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट हुआ है वो यही था कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस तरीके से करें, टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स के जरिए से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। देयर इज नो अदर वे देन दिस। तो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट। ये बात आप लिख लो सारे किसी रजिस्टर के ऊपर। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई एम गोइंग टू एंड अप द लाइव लेक्चर। आपका लाइव चला था तो मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा। फिर वेट करो, मैं आपकी अटेंडेंस भी मैंने मार्क कर दी है।